हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं मलबेरी पब्लिकेशन 8th स्टैंडर्ड की रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित द ग्रैंडफादर एंड द पाइथन। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चलिए देखते। Aunt Mabel arrived next day for a 3-week visit, and for a couple of days, Grandfather and I were a little apprehensive in case the python made a sudden reappearance. But on the third day, when he didn't show up, we felt confident that he had gone for good. And then, towards evening, we were startled by a scream from the garden. Seconds later, Aunt Mabel came flying up the veranda steps, looking as though she had seen a ghost. In the guava tree! She gasped. I was reaching for a guava when I saw it staring at me. The look in its eyes, as though it would devour me. Calm down, my dear. Urged Grandmother, sprinkling her with eau de cologne. Calm down and tell us what you saw. A snake! Sobbed Aunt Mabel. A great boa constrictor. It must have been 20 feet long. In the guava tree. Its eyes were terrible. It looked at me in such a queer way. My grandparents looked significantly at each other, and Grandfather said, "I'll go out and kill it," and sheepishly taking hold of an umbrella, sallied out into the garden. But when he reached the guava tree, the python had disappeared. "Aunt Mabel must have frightened it away," I said. "Hush," said Grandfather. "We mustn't speak of your aunt in that way." But his eyes were alive with laughter. After this incident, the python began to make a series of appearances, often in the most unexpected places. Aunt Mabel had another fit of hysterics when she saw him admiring her from under a cushion. She packed her bags, and Grandmother made us intensify the hunt. Next morning, I saw the python curled up on the dressing table, gazing at his reflection in the mirror. I went for Grandfather, but by the time we returned, the python had moved elsewhere. A little later, he was seen in the garden again. Then he was back on the dressing table, admiring himself in the mirror. Evidently, he had become enamored of his own reflection. Grandfather observed that perhaps the attention he was receiving from everyone had made him a little conceited. "He's trying to look better for Aunt Mabel," I said, a remark that I instantly regretted, because Grandmother overheard it and brought the flat of her broad hand down on my head. "Well, now we know his weakness," said Grandfather. Are you trying to be funny too? Demanded Grandmother, looking her most threatening. "I only meant he was becoming very vain," said Grandfather hastily. "It should be easier to catch him now." तो देख लिया है, चलिए अब हिंदी में भी देख लेते हैं ग्रैंडफादर एंड द पाइथन। चलिए रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी थी, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो आंटी है मेबल, ये जो आई है अपनी छुट्टियों बिताने के लिए, थोड़े दिन के लिए इनके घर में आते ही ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है ये और इनके ग्रैंडफादर ये सोच रहे हैं, बाप रे इतने दिन ये रहने वाली है, काश वो पाइथन अगर फिर से यहाँ पे आ जाए, ये उसके बारे में सोचते हैं और ये डर के आंटी यहाँ से भाग जाए करके, यही उनके दिलो दिमाग में चालू है। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आंटी का चिल्लाने का और पाइथन का दिखने का कोई भी चांसेस नहीं हुआ। तो इन लोगों ने श्योर कर लिया कि पाइथन कहीं पे चला गया है। पाइथन एक सांप होता है और फिर ये लोग अब अपने जी भी हरकत जो मतलब वरांडा में एक दिन जो आंटी थी वो ज़ोर ज़ोर से भाग भाग के घर में आ गई, डरी हुई थी, सदमे में भी थी आंटी, और इसलिए मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर दोनों भी बहुत चिंताजनक स्थिति में थे। आंटी बता रही थी कि वरांडा में उसने गव्वा पेड़ के पास एक बहुत बड़ा सांप देखा। वो जब जाम निकालने के लिए, अमरूद निकालने के लिए गई थी, तब वो उसे घूर घूर के देख रहा था जैसे कि वो उसे काट ही लेगा, मारे डालेगा। वो बहुत डर गई थी, उसकी नज़र बहुत जहरीली थी, उस गंदी तरीके से उस आंटी को उसने देखा था। अंकल
अंकल नहीं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर दोनों। तो ग्रैंडमदर उसके पास आके बैठती है, प्लीज़ डरो मत पाइथन, अच्छा ठीक है मैं इनको भेजती हूँ, श्योरली तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, तो तुम अभी यहाँ पे अच्छे से बैठो, पानी वगैरह पियो। आंटी बोलती है नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बहुत बड़ा सांप था, अमरूद के पेड़ के बिल्कुल पास में ही है और उसकी नज़र मैं कभी नहीं भूल सकती, उसकी आंखें, उसका देखने का तरीका बहुत जहरीला था। तभी ग्रैंडफादर भी उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं कि हाँ रियल में पाइथन ऑलरेडी हम उन लोगों को 1-2 बार दिख चुका था, तो वो रियलाइज़ कर सकते थे कि आंटी के इतना जो डर लग रहा है वो डर ऐसे ही झूठ नहीं था, वो 20 फुट इतना लंबा सांप था। तो ग्रैंडफादर बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाके वहाँ पे देखता हूँ और उसे मार डालता हूँ। और ग्रैंडफादर अपने जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही वो मारने के लिए हाथ में छाता लेके चले गए। कहाँ पे चले गए? तो जहाँ पे आंटी ने वो सांप को देखा था वो वाला अमरूद का पेड़। अब उस गार्डन में उस पेड़ के पास आ गए, बच्चा जो है वो भी आ गया है, दोनों भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। तो बच्चा बहुत ही बोला कि शायद से ये डराने के लिए आ गया, आंटी यहाँ रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, ये उसको भी लग रहा होगा। तो अंकल जो है ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ मे बी हम लोगों को बचाने के लिए और ये आंटी को भगाने के लिए ये अजगर आया होगा, ये पाइथन आया होगा। अब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वेज में ये दिखने लगा था। आंटी एक दिन टीवी देखते हुए सोफा पे बैठी हुई थी और आंटी को अपने कुशन के नीचे से वो मस्त से उसको देखते हुए घूरते हुए फिर से दिख गया था। तो ये आंटी के लिए बहुत ही डरावनी चीज़ थी कि घर में सोफा के ऊपर जब वो बैठी थी और वहाँ पे भी वो आके दम गया था। हाँ शायद से ये पाइथन इतना उसको बार बार दिख रहा था कि आंटी ने अब समझ लिया था कि मुझे ही दिख रहा है, बाकी घर के किसी और को नहीं दिख रहा है, तो सामान भर लो और चले जाओ। वो चली गई बेचारी। जो बच्चा है उसे, बच्चा मतलब ये रस्किन बॉडी है, इन्हें ये वापस ये पाइथन ड्रेसिंग टेबल पे आईने को खुद अपने आप को आईने पे देख रहा था। शायद अपने मुखड़े पे खुद ही वो क्या हो गया था, फिदा हो गया था। ये दोनों देख रहे हैं, लेकिन जब बच्चा ग्रैंडफादर को बताने के लिए चला गया तब तक पाइथन कहीं पे और जगह पे चला गया था। लेकिन वो उनका घर छोड़ के नहीं गया था, वो रोज़ आता था और अपने आप को आईने में देखता था। वो सच धज के जैसे कोई लड़की देखती है वैसे वो अपनी, आप देख सकते हैं एनिमेशन में वो किस तरीके से अपना चेहरा और अपनी जीभ, अपना जो फिगर है वो किस तरीके से मिरर में देखता है। इस बार तो ग्रैंडफादर ने भी देख लिया था कि पाइथन अपने आप को कैसे आईने के सामने खड़ा होके अपने आप को घूरता है, देखता है, एडमायर करता है। वो अपने आप पे कितना फिदा हो गया था, पता नहीं वो आईने के सामने रह के क्या सोचता होगा। तभी रस्किन बॉन्ड जो बच्चे के रूप में है वो बोलते हैं मे बी वो आंटी को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहा, मेकअप कर रहा होगा, नहीं तो अपने आप को वैसे ढालने की कोशिश कर रहा। तभी जो पीछे खड़ी हुई ग्रैंडमदर है, उन्होंने ये सुन लिया, आके उसके प्यार से उसके सर पे मार दिया और बोला तुम बेटा ऐसे नहीं बोलते, बड़े लोगों के लिए ऐसी शरारती भरी बातें नहीं करते। तभी जो मतलब ग्रैंडफादर है वो भी बोलते हैं कि मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो ग्रैंडमदर बोलती है तुम भी ऐसे बोलते हो? अरे नहीं भगवान, ऐसे ग्रैंडफादर बोलते हैं और बोलते हैं अरे ये तो बहुत इजी वे है, अगर हमको उसके वीकनेस पता चल गई है कि उसको आईने के सामने खुद को अपने आप को देखने की आदत है, इसका मतलब अब उसे पकड़ना और मारना बहुत इजी हो गया है। तो बच्चों मैंने ये स्टोरी ग्रैंडफादर एंड द पाइथन, ये स्टोरी आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। देखते रहिए, मिलेंगे फिर से।